Hello, all the dear students of class ninth. Welcome you all in the online classes. I am your mentor Bimlesh Singh. Today I am going to introduce you the part of the grammar and in which writing skill. तो आपको ये समझना है कि आपका जो सेक्शन है पार्ट बी कॉम्प्रिहेंशन के बाद उस राइटिंग स्किल में आपको क्या क्या पढ़ना है. तो द फर्स्ट इज़ द लेटर राइटिंग, second is email, third is articles, fourth stories, fifth diary entry, sixth descriptive paragraphs, person, place and event. When I will teach you, it will be very much confirm in mind. And notices, I will provide you the video, okay. And number 8 is speeches. So dear students, as you know that there are total 8 points have been given, and we will study them. So as you know, the first chapter, that is the letter writing, today I'm going to start. So get ready. So first of all, let me introduce you with letter writing. Actually, dear students, I have taken pick from the same book which have been prescribed for you for the class 9th and 10th. Both a single book has been prescribed, so you can open it, okay, and you can find the same matter in that. So that's heading letter writing. Letter writing is one of the very effective modes of communication. Letters can be, I think there is no need to go very explanative mode or the way, because you are already familiar with the letter writing, but there is some improvement of writing it, the structure and the way in secondary classes. Okay, so feel yourself that you are a student of not junior classes like the 6 7 8. You are now the student, properly you are the student of CBSE board. So first is the personal letters are just written to the friends or the relatives. Second is the official letter is to just write to different government or public offices. And the third is the business, and that is the placing and receiving orders, complaints, etc. And the letters to editors, formal and informal. So these four types of the letters especially you can understand, but basically we have just learned in the previous classes also that there are two kinds of the letters. The first is the formal and informal. Okay, personal, official, business letters to the, okay. So the form or the structure of the letter, each type of letter has its own particular form. It's very important to know that जितने भी प्रकार के लेटर होते हैं उनका अलग अलग एक फॉर्म होता है लिखने का, ओके. बट देयर आर, लेकिन कुछ जो होते हैं बहुत डिफरेंस नहीं होता, बट देयर आर सर्टेन फीचर्स कॉमन टू ऑल टाइप्स, दीज आर. लेकिन कुछ कॉमन फीचर्स होते हैं उसमें जिसको हम इस्तेमाल करते हैं, लाइक द हेडिंग. दिस कंसिस्ट्स ऑफ द राइटर्स एड्रेस. जो हेडिंग होती है उसमें सबसे पहले क्या करते हैं, राइटर्स की एड्रेस रहती है, एंड द डेट, उसका डेट रहता है, उसका डेट नहीं रहता, वहाँ पर डेट लिखते हैं, विच शुड बी रिटन एट द टू द लेफ्ट हैंड कॉर्नर ऑफ द लेटर. कहाँ लिखना चाहिए, लेटर के लेफ्ट हैंड कॉर्नर में. लाइक हियर यू कैन सी द एग्जाम्पल, 58 रोयपेटा चेन्नई, दिस इज द पर्टिकुलर एड्रेस, एंड द डेट ठीक उसके नीचे एटलीस्ट देयर शुड बी द गैप ऑफ 1 लाइन, 28 मार्च 2020. नोट आप देख लो, द हेडिंग में नॉट बी रिटन इन फॉर्मल इन्विटेशन. हेडिंग may not be written in formal invitation. The date may be written as March 28 2020 or even as 28. तो दिस फॉर्मेट यू शुड. अब यहाँ पे पूरा एड्रेस मत लिखना, केयर आप फलाना ठिकाना ये, बिकॉज
इस पे लिखे एड्रेस पे वो नहीं जा रहा है. यू मस्ट बी जस्ट राइट इट ऑन द इनवेलप और अदर सोर्सेस. ओके, सो लेट्स प्रोसीड. ये आपने हेडिंग के बारे में देखा और उसके कुछ इंस्ट्रक्शन थे. अब आगे देखते हैं. यहाँ पे थोड़ा सा जो है वो पिक धुंधली आ गई है, बट आप देखो द डेट क्या है. ऑलवेज राइट द डेट बिलो द सेंडर्स एड्रेस. अब ये आप जान जाओ कि डेट मस्ट बी बिलो द सेंडर्स एड्रेस. जो चिट्ठी भेज रहा है उसका पता लिखने के बाद वहाँ पे आप नीचे जो है डेट को मेंशन करोगे. द स्टूडेंट्स कैन चूज़ एनी ऑफ द फॉलोइंग वेज ऑफ राइटिंग द डेट. तो यहाँ पे डेट को लिखने के तरीक़ों को बताया है. मोस्टली आप DDMMYY का प्रयोग करो एज एन इंडियन, and no need to just go very complex order and to learn. You will be confused regarding that. So follow the rule, follow the pattern which you write on your notebook. You can mention it without any hesitation. ये क्या कहता है? Unless mentioned in the question, students should write the same date on which they are टेकिंग द एग्जामिनेशन. तो जिस दिन एग्ज़ाम है, मान लीजिए कि अगर आप बोर्ड के एग्ज़ाम में बैठे हो या किसी भी एग्ज़ाम में बैठे हो और लिखने के लिए आया है, तो आप वही डेट लिखो. नो नीड टू जस्ट राइट द आर्टिफिशियल डेट रिगार्डिंग दैट. ठीक है. अगली हेडिंग क्या है? ग्रीटिंग्स और सैल्यूटेशन, अभिवादन जिसको बोलते हैं. उसमें कुछ आप जब शुरू करते हो तो जैसे क्या कहते हो? द सैल्यूटेशन शुड बी रिटन बिलो द एड्रेस. जब आप एड्रेस लिख दो फिर उसके नीचे होना चाहिए बिलो द एड्रेस एंड डेट आफ्टर लिविंग द स्पेस ए लाइन और सो. क्या कहता है कि सैल्यूटेशन शुड बी रिटन, सैल्यूटेशन लिखा जाना चाहिए बिलो द एड्रेस, एड्रेस के नीचे, एंड डेट, डेट मतलब एड्रेस और डेट के नीचे आफ्टर लिविंग द स्पेस ऑफ ए लाइन और सो, एक या इससे ज़्यादा की लाइन छोड़ के. The form of salutation will vary according to the type of letter you write. जिस तरीके का लेटर स्टूडेंट्स यू आर गोइंग टू राइट उसी के अकॉर्डिंग आपकी ग्रीटिंग्स और सैल्यूटेशंस होनी चाहिए. जैसे आप देख रहे हो पर्सनल लेटर, ये तो क्या कहता है? द मेंबर ऑफ द फैमिली. ठीक है. द सैल्यूटेशन विल बी, क्या होगा अगर आप फैमिली मेम्बर को लेटर लिखने जा रहे हैं तो सैल्यूटेशन क्या होगा? माई डियर मदर, माई डियर फादर, माई डियर सिस्टर, माई डियर ब्रदर, टू अंकल आंटी, वट एवर. इसमें कोई वो नहीं है. और फ्रेंड को लिखने जा रहा हो दूसरा तो डियर मिस्टर शर्मा, डियर मोहन, माई डियर मोहन. ठीक है. और इस तरीके से स्ट्रेंजर को इस तरीके से चीज़ें आप मेंशन नहीं करते हैं. स्ट्रेंजर्स को, जिसको आप नहीं जानते, इनको तो जानते हैं तो डियर बना दिया. ठीक है. लेकिन सबको डियर नहीं बना सकते मोस्टली. आगे चलिए आपको दिखाता हूँ. यहाँ पे आप देखिए, अब वो तो आपका रहा. अब बिजनेस लेटर में क्या होता है, अब यहाँ पे देख लो आप. इन ए बिजनेस लेटर वी हैव अ थिंग कॉल्ड इनसाइड एड्रेस. बिजनेस लेटर में एक चीज़ होती है जिसको हम इनसाइड एड्रेस बोलते हैं. बिफोर वी कम टू सैल्यूटेशन, जब हम सैल्यूटेशन पे आते हैं, जैसे डियर सर, मैडम जो भी लिखते हैं उसी को सैल्यूटेशन ग्रीटिंग्स पे आता है. द इनसाइड एड्रेस गिव्स द नेम ऑफ द पर्सन. जो इनसाइड एड्रेस होता है वो व्यक्ति का नाम, फर्म और ऑर्गेनाइजेशन रिटन टू, जिसको हम लिखते हैं चिट्ठी. दिस इज़ गिवन इमीडिएटली बिलो द डेट आफ्टर द गैप ऑफ ए लाइन और टू. और ये कब लिखा जाना चाहिए? ठीक डेट लिखने के बाद. अगर वो बिजनेस लेटर है तो एड्रेस जो है उस व्यक्ति का जिस ऑर्गेनाइजेशन को हम लिख रहे हैं, इसका मतलब पहले भेजने वाले का नाम, फिर डेट, और फिर उसके बाद जो है सैल्यूट वो यूज करते हैं जिसको हम भेज रहे हैं उसका. दिस फॉलो द सैल्यूटेशन अगेन विथ सम गैप. और उसके बाद जो है सैल्यूटेशन आएगा कुछ गैप के बाद. देखिए, द फॉर्म ऑफ द सैल्यूटेशन इन ए बिजनेस लेटर इज डियर सर्स इफ़ यू राइट टू ए फर्म और ऑर्गेनाइजेशन. अगर हम किसी फर्म या ऑर्गेनाइजेशन को अगर हम लिख रहे हैं लेटर तो वहाँ पे डियर सर्च करेंगे. हाउएवर इफ़ वी आर राइटिंग टू एन इंडिविजुअल, अगर हम किसी व्यक्ति को लिख रहे हैं, सच एज द मैनेजर और सेक्रेटरी
ऑफ द फर्म और ऑर्गेनाइजेशन, किसी फर्म या ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर को, द सैल्यूटेशन इज़ मियरली डियर सर और डियर मैडम, प्लूरल नहीं शो करेंगे वहाँ पे, सिर्फ डियर सर या डियर मैडम लिख देंगे। अब देखिए ये जो एक कुछ पॉइंट्स मेंशन किया है सी में जो है, लेटर टू द एडिटर, लेटर्स रिटन टू द एडिटर आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ऑल टाइप्स ऑफ द लेटर। ध्यान रखिएगा, जो हम न्यूज़पेपर के एडिटर्स को जो लेटर लिखते हैं वो हर प्रकार के लेटर से बिल्कुल ही अलग होता है। दीज आर रिटन टू इन्फ्लुएंस पब्लिक ओपिनियन एंड रेज वंस वॉइस अगेंस्ट और फॉर सम सोशल कंडीशन। ये क्या करता है, पब्लिक ओपिनियन को इन्फ्लुएंस करता है और आवाज़ उठाता है किसी सोशल कंडीशन के ख़िलाफ़ जो बुरी है। सो सच लेटर्स हैव टू बी ऑब्जेक्टिव, ये ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। देयर शुड बी सम मोटो रिगार्ड बिहाइंड इट। यू मस्ट नॉट टॉक about your personal problems but about the interest of the society. You must be careful at the time of writing the letter to the editor that you should not mention your personal problems in that. You should focus only on the social problems. Okay, appeal to the authorities or the society but be temperate in your language, thou योर एक्सप्रेशन में बी पैशनेट। देखिए, और कभी भी उतावलेपन वाली भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए और अपनी बात को प्रॉपर वे में रखना चाहिए। हियर द स्टूडेंट्स विल डू वेल इफ़ दे स्टडी लेटर्स रिटन टू द एडिटर्स। स्टूडेंट्स विल डू वेल, अच्छा करेंगे, इफ़ दे स्टडी लेटर्स रिटन टू द एडिटर्स इन न्यूज़पेपर। देखिए, आपको ये समझने के लिए यू शुड रीड द न्यूज़पेपर, जहाँ एडिटर्स को बहुत सारे लोग लेटर्स लिखते हैं, वो प्रिंट भी करते हैं। ठीक है, तो आप उसको देखोगे तो यू विल बी ईजिली अंडरस्टैंड इट। लीव डबल स्पेस बिटवीन द डेट एंड द सैल्यूटेशन टू द न्यूज़पेपर एडिटर्स, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको डबल स्पेस छोड़ना है बिटवीन द डेट एंड द सैल्यूटेशन टू द न्यूज़पेपर्स के एडिटर को। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, लेट देयर बी नो रेपिटिशन और बीटिंग अबाउट द बस। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कोई चीज़ दोहरा के नहीं लिखेंगे, एकदम क्लियर और एक बार में उनको क्लियर वो स्पष्ट करके वो कर देंगे, बार बार उसको नहीं करेंगे। अब ये क्या कहते हैं, दैट इज़ द बॉडी ऑफ द लेटर और कंटेंट्स। लेटर्स की बॉडी क्या होनी चाहिए, दिस इज़ द मेन एंड द मोस्ट यूज़फुल पार्ट ऑफ द लेटर। ये जो लेटर का है सब मेन और मोस्ट यूज़फुल पार्ट है। दिस पार्ट शुड बी रिटन इन ए सिंपल नेचुरल स्टाइल। और ये जो पार्ट होता है डियर स्टूडेंट्स, इट शुड बी रिटन इन अ वेरी सिंपल एंड नेचुरल स्टाइल। ए फेमिलियर वे शुड बी adopted in personal letters, but a formal style with great clarity must be used in all other letters। देखिए, पर्सनल में तो कुछ भी लिख सकते हो, कुछ भी नहीं लिख सकते, बट यू थोड़ा बहुत ढीले भी हुए तो चला गया। बट जब आप थोड़ा सा इम्पर्सनल में जाते हो तो यू मस्ट बी केयरफुल अबाउट योर लैंग्वेज एंड द सिंप्लिसिटी रिगार्डिंग दैट। If the letter is long, the body may be divided into 2 or more paragraphs। अगर लेटर बहुत बड़ा है तो बॉडी को 2 या 3 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। ए बिजनेस और ऑफिशियल लेटर मस्ट कन्फर्म टू द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स इन रिगार्ड टू द बॉडी ऑफ द लेटर। क्या कहता है, इट शुड बी ब्रीफ एंड टू द पॉइंट। देखो, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि ये ब्रीफ होना चाहिए और टू द पॉइंट होना चाहिए। इट मस्ट गिव ऑल द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन एंड नो मोर। ऐसा है ना, सिर्फ सारी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन देना चाहिए और कुछ नहीं। द क्लैरिटी इज़ ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस। और जो सब्जेक्ट मैटर की जो क्लैरिटी है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ऑफिसर्स के बाद इतना टाइम नहीं रहता, और कुछ ऐसा वे होना चाहिए आपको कि वो एक बार पढ़ें और क्लियर हो जाए। अवॉइड वैग्यू एंड अनसर्टेन लैंग्वेज। द स्टाइल शुड बी फॉर्मल, करेक्ट एंड कर्टियस। इफ़ एनी थिंग इज़ इनक्लोज्ड विद द लेटर, अगर कुछ भी जो है वो लेटर के साथ इनक्लोज करना है, लाइक ए बायोडेटा, ए चेक और पोस्टल ऑर्डर, द सेम मस्ट बी मेंशन इन द बॉडी ऑफ द लेटर। तो आप उसको बॉडी जो लेटर आप लिख रहे हो उसमें मेंशन कर देना चाहिए कि मैंने इसमें बायोडेटा, इसमें ये चेक है, वो क्या है, वो उसमें अटैच कर दिया है। लीव टेकिंग और सब्सक्रिप्शंस। अब ये मान के चलिए कि जब आप लेटर कंप्लीट कर चुके होते हैं तो आपको लास्ट में भी एक फॉर्मेलिटी करनी होती है, एंड व्हाट यू शुड
आफ्टर द लेटर इज कंप्लीट, जब लेटर कंप्लीट हो जाए, राइट द लीव टेकिंग फ्रेज एट द एंड एंड पुट योर सिग्नेचर बिलो इट दस योर्स सिंसियरली। क्या होता है, आप ऐसे इस तरीके का प्रयोग कर सकते हैं, RN श्रीवास्तव, RN श्रीवास्तव सिग्नेचर एक तरीके से, और उसके नीचे अपना फुल नेम वहाँ पे मेंशन कर देते हैं। ठीक है, आगे जब चलेंगे इसमें, हाँ तो देखिए यहाँ पे उसमें नहीं एडजस्ट हो पाया, तो व्हाट्स यूज शुड राइट, नोट्स में क्या दें, नो एपस्ट्रॉफी इज यूज्ड इन योर्स। ध्यान रखिएगा, जब भी योर्स लिखते हैं तो उसमें एपस्ट्रॉफी का यूज नहीं करते कि आर के ऊपर एपस्ट्रॉफी यूज कर दिया, देन यू अप्लाई एस, आइदर बिफोर और आफ्टर द एस। ओके, इन पर्सनल लेटर्स, आप देखो, इन पर्सनल letters instead of yours sincerely you can use yours very sincere, sincerely yours, yours affectionately or relation। personal में your affectionate brother, your loving son, etc। in official letter the normal expression used yours। ठीक है, इस तरीके की चीज़ें, एंड आई विल गिव यू द रिमेनिंग पार्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच। इसको आप बार बार देखिए स्टूडेंट्स, एंड इट विल बी वेरी मच क्लियर। थैंक यू वेरी मच।